سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے شیش حابیل کے قتل کے کتنے عرصہ بعد پیدا ہوئے؟ جواب: 5 سال بعد۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے مرنے سے قبل اپنے کس بیٹے کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب: حضرت شیش علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کون سے پیغمبر تھے جو بن باپ کے پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو بچوں کو جوان اور کر دیتی ہے اور جوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے؟ جواب: عمر بچوں کو جوان اور جوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ سوال: عورت کس عمر تک بچے پیدا کر سکتی ہے؟ جواب: عورت 50 سے 55 سال کی عمر تک بچے پیدا کر سکتی ہے۔ سوال: زیادہ ٹی وی دیکھنا کس بیماری کا باعث بنتا ہے؟ جواب: جسمانی کمزوری اور موٹاپا۔ سوال: کس انسان کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ جواب: قابیل کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ سوال: کیا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہونا دولت آنے کی نشانی ہے؟ جواب: دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہونا دولت آنے کی نشانی سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلامی لحاظ سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں۔ سوال: کون سی روٹی کھانے سے بچوں کا قد تیزی سے بڑھنے لگتا ہے؟ جواب: باجرے کی روٹی۔ سوال: وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ اوپر جاتی ہے لیکن کبھی بھی نیچے نہیں آتی؟ جواب: دھواں۔ سوال: کچے چاول کھانے والے انسان کو کون سی خطرناک بیماری لگتی ہے؟ جواب: جوڑوں کی۔ سوال: انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہمیشہ ایک ہی سائز کا رہتا ہے؟ جواب: آنکھیں۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ ڈاکٹر کس ملک میں ہیں؟ جواب: انڈیا میں۔ سوال: دنیا کا سب سے مہنگا دودھ کس جانور کا ہوتا ہے؟ جواب: گدھی کا دودھ۔ سوال: انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو بجلی پیدا کرتا ہے؟ جواب: دماغ۔ سوال: اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو کیا اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: نماز کے دوران سانپ یا بچھو دکھے تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، توڑ سکتے ہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ جواب: کل 14 سجدے ہیں۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 25 یا 24 سال شریک حیات رہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس کا حکم دیا ہے؟ جواب: نماز کا حکم۔ سوال: وہ کون سا پانی ہے جس کا ایک گھونٹ پینے سے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی؟ جواب: حوض کوثر کا پانی۔ سوال: آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟
जवाब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल क्या आप बता सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में किस दरवाजे से दाखिल होंगे? जवाब बाबुर रहमा और बाबुत तौबा से दाखिल होंगे। सवाल दोज़ख के उस जेल खाने का नाम क्या है जिसमें मुतकब्बरों को डाला जाएगा? जवाब दोज़ख के उस जेल खाने का नाम बोलिस है और उसमें मुतकब्बरों यानी गरूर करने वालों को डाला जाएगा। सवाल खातून जन्नत हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहाँ मदफून है? जवाब खातून जन्नत हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नतुल बकी मदीना में मदफून है। सवाल बरोज़े क़यामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारी सिफारिश कौन करेगा? जवाब रोजा और कुरान मजीद। सवाल कौन सा नेक अमल औरत बगैर महरम के नहीं कर सकती? जवाब हज और उम्रा। सवाल क्या बिस्तर पर लेटकर जिक्र इज़कार करना जायज है? जवाब जायज है। सवाल नमाज शुरू करते ही कौन सा अमल होना अल्लाह की नाराजगी की निशानी है? जवाब नमाज और जिक्र करते हुए लज्जत महसूस न होना और दिली सुकून न मिलना। सवाल क्या आप जानते हैं कि किस फरिश्ते को यहूदी अपने दुश्मन समझते हैं? जवाब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। सवाल पारों की तकसीम में क्या मुसल्लत थी? जवाब एक पारा रोजाना पढ़ने से एक माह में पूरा कुरान मजीद खत्म हो सकता है। सवाल ये किसका कौल है कि जिसको कौम ने बाहमी मशवरा किया उस कौम ने फलाह पाई? जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल कुरान मजीद की किस सूरत में वाक़या मिराज का जिक्र आया है? जवाब सूरत बनी इसराइल में। सवाल जीनत कुरान किस सूरत को कहा जाता है? जवाब सूरत रहमान। सवाल किस ज़ौजा मुतहरा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई? जवाब हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा की शिकायत पर। सवाल कौन सी औरतों की मदद के लिए फरिश्ते उतरते हैं? जवाब मोमिन के दिल को खुश करने वाली। सवाल सुन्नत के लुग़वी माना क्या है? जवाब तरीका और अमल। सवाल मुलाकात के इख्तिताम पर कौन से अल्फाज कहना गुनाह है? जवाब जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तो मुलाकात खत्म होने पर रवानगी के वक्त अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, फी अमानुल्लाह या इसी तरह से कुछ दूसरे अल्फाज कहे जाते हैं। जबकि हदीस मुबारक है जब तुम किसी से सलाम करो तो सलाम में पहल करो यानी कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहो, और जब किसी से मुलाकात करने के बाद या फोन कॉल बंद करने के बाद वहां पर भी सलाम करना है। और सुन्नत मुबारक भी यही है यानी कि हमारा आखिरी जुमला भी सलाम पर होना चाहिए। उसके अलावा हम अगर अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज और फी अमानुल्लाह कहकर अपनी महफिल बर्खास्त करते हैं तो खूब समझ लीजिए ये जुमले खिलाफ सुन्नत हैं और ये जुमले कभी भी सलाम का मकाम ही नहीं ले सकते। सलाम करना एक बहुत बड़ी दुआ है और इस सलाम में बहुत बरकतें, रहमतें और दुआएं शामिल हैं और सुन्नत मुबारक पर अमल करने का भी सवाब है। सवाल सर्दियों में कौन सी गलती करने से हार्ट अटैक और फालिज हो जाता है?
जवाब, सर्दियों में फालिज और हार्ट अटैक के हमले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेडिकल साइंस ये कहती है कि सर्दी के मौसम में दो चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इन चीजों का ख्याल रखते हैं तो इंशाल्लाह फालिज और हार्ट अटैक से आपकी हिफाजत हो सकती है। दिल के पट्टों के लिए खून की फराहमी के लिए अचानक और बहुत ज्यादा कमी को हार्ट अटैक कहा जाता है। ऐसे ही दिमाग में खून की रवानी मुतासर होने पर होता है, जिसे फालिज कहा जाता है। सर्दियों में हार्ट अटैक और फालिज की दो बड़ी वजूहात ये हैं कि एक बड़ी वजह यह है कि अक्सर लोग सर्दियों में पानी नहीं पीते, जिससे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिस्म ठंडा हो जाता है और इंसान का खून जम जाता है। और दूसरी वजह यह है कि सर्दी के मौसम में इंसानी जिस्म की रगें तंग हो जाती हैं। इसलिए माहिरीन ये तजवीज करते हैं कि सर्दी के मौसम में गर्म मशरूबात और नीम गर्म पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और जिस्म को गर्म कपड़े, चादर, टोपी पहनकर गर्म रखना चाहिए। सवाल, औरत अगर अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ ले तो क्या होता है? जवाब, अक्सर लोगों का यह कहना होता है कि अजान के फौरन बाद औरत नमाज नहीं पढ़ सकती। जब तक मस्जिद में जमात ना हो जाए उस वक्त तक औरत घर पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। जबकि दुरुस्त बात यह है कि औरत का अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ना जायज है। इसके लिए ये शर्त नहीं कि मस्जिद में जमात होने के बाद ये औरत घर पर नमाज अदा करेगी तो उसकी नमाज होगी। ये बिल्कुल गलत है। औरत अजान के फौरन बाद नमाज अदा कर सकती है और इसी तरह नमाज पढ़ना भी जायज है। सवाल, ज्यादा वजीफे पढ़ने से क्या नुकसान होता है? जवाब, अक्सर लोगों का कहना होता है कि ज्यादा वज़ाइफ करने से इंसान को नुकसान होता है, जबकि अल्लाह पाक ने जिक्र इस्कार की कोई हद मुकर्रर नहीं की है, बल्कि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह को कसरत से याद करो। और देखा जाए तो दीन इस्लाम हमें हर लम्हा अल्लाह के जिक्र से जोड़ कर रखता है, जैसा कि सोने की दुआ, जागने की दुआ, खाना खाने, ऐना देखने, बैतुल खला जाने और आने, सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने से लेकर जिंदगी के हर कदम पर हमें अल्लाह का कसीर जिक्र पढ़ कर सुकून मिलता है, इस्तकामत मिलती है और इस तरह किसी वजीफे को कोई नुकसान नहीं, जबकि अल्लाह ताला को इसके सिफाती नामों के साथ कसरत से पुकारना चाहिए। सवाल, किस नबी के जमाने में ऊंट का गोश्त खाना हलाल नहीं था? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं मच्छर कौन से ब्लड ग्रुप वालों का खून पीते हैं? जवाब, ग्रुप ओ। सवाल, इंसानी जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब, जो हराम खाने से बड़ा होगा। सवाल, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किस शहर की कसम खाई है? जवाब, मक्का मुकरमा की। सवाल, बताइए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कौन सा जानवर जन्नत में जाएगा? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय। सवाल, जन्नत में मर्दों को हुरें मिलेंगी तो खवातीन को क्या मिलेगा? जवाब, जो खवातीन जन्नत में जाएंगी तो उनको जन्नत में उनके दुनियावी शोहर मिलेंगे, मर्दों को मिलने वाली तमाम हुरों की सरदार होगी। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शब मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर मकदम किस आसमान पर किया था? जवाब, पहले आसमान पर। सवाल, खलीलुल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितने मलाइका का नाम मौजूद है? जवाब, कुरान मजीद में कुल 7 मलाइका का नाम मौजूद है। सवाल, जब लोग झूठी अहादीस बयान करें तो ये किस वक्त की निशानी है? जवाब, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग सही हदीस से इनकार करेंगे और झूठे हदीस बयान करेंगे। सवाल, कौन सा गुनाह करने वाले इंसान को आप शादी पर नहीं बुला सकते?
जवाब, उस शख्स को नहीं बुला सकते जो एलानिया सूद खाता हो। सवाल, गुनाहगार लोग रोज क़यामत किस चीज में डूबे होंगे? जवाब, अपने पसीने में। सवाल, वो कौन सी आजिम खातून है जिनके घर के खादम फरिश्ते हुआ करते थे? जवाब, हजरत फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, कौन सी नमाज सलाम फेरने के बाद भी खत्म नहीं होती? जवाब, जिसमें सजदा साहब वाजिब हो। सवाल, नमाज इशा का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? जवाब, सूरत हूद में। सवाल, कुरान मजीद की तीसरी मंजिल किस पैगंबर के नाम से शुरू होती है? जवाब, सूरत यूनुस हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम से। सवाल, गुनाह से बचने की कौन सी दो सूरतें हैं? जवाब, नंबर 1, दिल में अल्लाह ताला का शौक हो। नंबर 2, या अल्लाह ताला के सामने पेशी का खौफ हो। सवाल, मुनासिक हज का अहम तरीन दिन कौन सा है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता? जवाब, यौम अरफात। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके तकरीबन 3000 साल बाद पैदा हुए? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आते ही कितने रकात नमाज अदा की? जवाब, 4 रकात। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई उसमें कुल कितनी मंजिलें थी? जवाब, कश्ती नूह की 3 मंजिलें थी। सवाल, जिन्नात खास तौर पर किस इंसान पर उतरते हैं? जवाब, हर वह झूठे और गुनाहगार पर उतरते हैं। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में कितनी अज़वाज मुतहरात का इंतकाल हुआ? जवाब, 2, हजरत खतीजतुल कुबरा और हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सवाल, दोज़ख के आतशी दरख्त का क्या नाम है? जवाब, दोज़ख में एक आतशी दरख्त है और उस दरख्त का नाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शजर ज़क़ूम फरमाया है। सवाल, कुरान मजीद की आखिरी आयत कब नाज़िल हुई? जवाब, हिज्जतुल विदा के मौका पर। सवाल, जो शख्स मुसलसल जुम्मा ना पढ़ता हो उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब, हदीस के मुताबिक जिसने 3 जुम्मे जान बूझ कर छोड़ दिए उसने कुफ्र किया। सवाल, अहादीस की सबसे मोतबर किताब कौन सी है? जवाब, सही बुखारी शरीफ। सवाल, इस्लामी साल का नवा महीना कौन सा है? जवाब, रमजान अल मुबारक। सवाल, बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? जवाब, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। सवाल, हदीस के मुताबिक वो कौन सा अमल है जो चूंटियों की चाल से भी ज्यादा खफीफ है? जवाब, रियाकारी। सवाल, जन्नत में वो कौन सा मकाम है जिससे जन्नत की नहरें बहती है? जवाब, जन्नतुल फिरदौस में वो मकाम है जिससे जन्नत की नहरें बहती हैं। सवाल, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? जवाब, 8 फरिश्तों ने। सवाल, कौन सी चीज का इंतजार करने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं?
جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ سوال: جنت کے دروگا کا کیا نام ہے؟ جواب: جنت کے دروگا کا نام رضوان ہے۔ سوال: قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 145 مرتبہ۔ سوال: کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب: کرتا اور تہبند۔ سوال: کس سورت کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب: سورت اخلاص۔ سوال: اسلام کی سب سے پہلے مسجد کا نام کیا ہے؟ جواب: اسلام کی سب سے پہلے مسجد کا نام مسجد قباء ہے اور یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: کیا چیز انسان کو لگ جائے تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ سوال: نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال: کس گھر میں بھلائی زیادہ تیزی سے آتی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح چھری اونٹ کے کوہان میں تیزی سے جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بھلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمان کثرت سے آتے ہوں۔ سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال: لباس کو کس طرح پہننے سے دولت قریب آتی ہے؟ جواب: پاجامہ بیٹھ کر پہننے سے دولت قریب آتی ہے۔ سوال: مکی صورتوں کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ جواب: مکی صورتیں مختصر اور عقائد کے بارے میں ہیں۔ سوال: نفلی نمازوں میں کون سی نماز سب سے زیادہ بلند درجہ رکھتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔